Very good point you have brought on. Yes, we do not sell any aerated water. I mean, like a Coke or a Pepsi that you're trying to mention. मेरी शुरुआत अभी ट्राइडेंट बोलते हैं पर ओबरॉयज होटल हुआ करता था तब. सो मैं सामने ही बैठा था, मेरे सामने ब्राउन ब्रेड था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार चेक करके देखता हूँ वो रील देख के. तो जब मैंने वो चेक किया तो वो ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स में कैरेमल शुगर था. अब कैरेमल शुगर तो हेल्दी होता नहीं है. क्या है, पीपल आर बीइंग चीटेड. यस, आई एम अवेयर ऑफ दैट. आई वुड नॉट टेक नेम्स बट एटलीस्ट पीएनआर इज नॉट डूइंग दैट विद यू. बट एक वो ब्राउन ब्रेड को एक टैग लग गया है, वो ब्राउन रहना चाहिए. Right, brown is equal to healthy. ब्लूबेरी भी आज ब्लू नहीं है. You're getting my point. पर एक कंसेप्ट बैठ गया है कि मुझे ब्राउन ब्रेड ब्राउन कलर में तो चाहिए ही चाहिए. अगर आप बेकरी इंडस्ट्री में हैं और एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के गेस्ट है मिस्टर शाहरुख पटेल, हु इज़ द ओनर ऑफ पब्स एंड रोल्स, जिन्होंने अपना ब्रांड एक लेगेसी ब्रांड बनाया है विच इज़ बूटस्ट्रैप. जो लास्ट 22 सालों में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में सीखा है वो आज उन्होंने हमारे एपिसोड पे शेयर किया है कि कैसे उन्होंने पीएनआर ब्रांड बनाया और क्या क्या चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स उनको फेस हुए, उन्होंने सारे आज यहाँ पे शेयर किए हैं. क्या चीज़ें उन्होंने इंडस्ट्री से सीखी और कैसे वो इन आइडियाज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बदल रहे हैं, और क्यों उन्होंने एक क्लाउड किचन ना ओपन करते हुए अपने और नए स्टोर्स ओपन किए बिकॉज ही केयर्ड अबाउट experiences. We have also talked about frozen foods and brown bread के आज मार्केट में लोग ब्राउन ब्रेड किस तरह एक हेल्दी फैक्टर से सेल कर रहे हैं. एंड बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द एपिसोड्स जाके योर पर्सपेक्टिव क्लिप्स का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ये सारे एपिसोड्स के छोटे छोटे क्लिप्स अवेलेबल है कि आप डायरेक्टली उन टॉपिक्स पे जाके उन टॉपिक्स को एंजॉय कर सकें. Thank you for coming on our first episode of Your Perspective, Mr. Shahrukh Patel. Thank you for inviting me over. Thank you, sir. So, sir, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि everybody knows who is Shahrukh Patel. Everybody in Nashik knows Shahrukh Patel is the owner of PNR. So, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये PNR की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आपने कैसे स्टार्ट किया और आज ये कहाँ पे है, तो आप उसका थोड़ा बता सकें तो. PNR is puffs and rolls. Yes, I think it's more popular now with PNR. Right. So yes, it all began in 2001 with the help of my late father, Mr. Hoshi Patel, and my brother Shahzad Patel, and we started our journey. That is the entire bakery setup from ND Patel Road. Okay. So we had a very small outlet at ND Patel Road, and we had the factory premises right behind that outlet itself. Okay. And it took me long years to start this venture. In fact, after finishing my studies, it took me 3 years just to do the setup of this entire business. Okay. So from what machineries I would be ordering to what kind of recipes I needed to rework on. So all that, and plus, of course, my father had blessed me during that time with the land that he had provided me to begin with. So yes, it took some time to start that business, but the journey has been incredible. Great. So for the viewers' perspective, can you tell us more about your background, like your educational background? So after I finished my 12th standard here in BYK College, I moved on to Mumbai. Okay. And from there, I did my hotel management, and later on, I requested my father to also let me do the bakery and confectionery course because that was a different one all by itself. Okay. And I had developed a keen interest during my hotel management to study bakery as well. Okay. So yes, bakery industry course was a very short-term course, but yes, I did that too in Mumbai. And learning has never stopped for me. So till date, I mean, over the period of these 25 years that I've been in this industry, at least once in 2 years or 3 years, I do go abroad for my trainings till date. Okay. Yes, I do that. Great. Because if learning never ends, I mean, till you die, every day, life itself teaches you something or the other. So yes, learning never ends. And for me also, I've kept it that way. I keep myself updated and keep myself upgrading with the new products that come in. Right. So जैसे जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो थोड़े आराम से हो जाते हैं. What the thing that drives you? आराम से हो जाते हैं. See, there are a lot of things we are not aware of. A lot of people, I mean, I have never missed out on a single trade fair.
of related with the bakery industry or even the hotel industry. Okay. में जो भी साल में कुछ मेन जो है मेन वंस आई एम टॉकिंग नॉट द रेगुलर वंस बट जो साल में 4-5 जो मेन वंस है in India which are happening. One happens in Delhi, the other happen in Mumbai. तो वो सारे मैं अटेंड करता हूँ and that again is a learning. What new ingredients have come in? What are the machineries that I've developed? Because machineries अभी जैसे आपका phone है. Every year there is a new model. So in the bakery industry बोलो या any other industry, every year there is something new that is coming up. तो वो कंट्री वाइज चेंज होती है या हम दूसरी कंट्री से अडॉप्ट होता है वो वो साइकिल कैसे चलता है? Well, innovation is not country wise. Even lot of things have happened in Maharashtra, innovation wise. Right. Lot of new things have started in this thing in India itself. So ऐसे नहीं है. You have to keep your eyes open. Be it any country, be it any city also. Few smaller cities also will surprise you with certain products. जो बहुत अच्छे हैं. It's like a singer can come up from a very big town as well as small town singers also do come up in life. So yeah, there is. You have to just keep your eyes open on this. That's it. Right. So asking about the youth of today, so how practical is it to get into the bakery industry? Any industry is not difficult. मेरा youth को इतना ही बोलना है कि give your 100% to whatever you are doing, be it this industry or any other industry for that matter of fact. You can adopt, any business or work anywhere. I just feel what we are lacking today is lack of knowledge about that particular business or work you want to get into. Right. तो वो ethics भूलने नहीं चाहिए. हमारा जो culture भी है, Indian culture, brilliant cultures. We have so many religions in India, so many different cultures. Every city has its own. अब आप मिसल का बात कर लोगे तो every city has its own different मिसल in Maharashtra, right? So every culture is different, but that roots जो अभी आजकल के बच्चे हैं ना वो roots भूल रहे हैं. I'm not saying कि माँ बाप कुछ कर नहीं रहे उसके लिए. They are doing it, but what I feel is more of indulgence of parents should come into making sure that their children are following their religion, their culture, the discipline in life. So ये यूथ में ये चेंज कैसे हुआ? ये कल्चर की वजह से हुआ या कुछ और कोई रीजन की वजह से हुआ? What's the reason? Why blame anything in life? It's very easy to blame someone. अगर कुछ स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहा है तो स्कूल को ब्लेम करके फायदा नहीं है या माँ बाप को भी फायदा नहीं है सिर्फ ब्लेम करके. It works. Everyone has their own importance and you have to make sure that children are listening and you are also listening to your child. Right. ये एक तरफा प्यार नहीं हो सकता है ना. Right. दोनों तरफा है. तो what I strongly suggest is children should be given gadgets, yes, but there has to be some discipline in that. Right. I keep using the word discipline a lot because it holds a lot of importance to me. So probably in this few hours you'll be hearing the word discipline a lot from my side. तो बच्चों को टैबलेट देना है ठीक है, पर एक सर्टेन एज के बाद देना चाहिए और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए ही देना चाहिए. और आप उस पर क्या दिखाते हो वो बहुत आपके हाथ में ही होता है. See, just to avoid a ruckus in a restaurant and you're giving an iPad so that वो शांति से खाएगा is not. So I have seen a lot of people, a lot of parents actually, उनके बच्चों के हाथ में मोबाइल एंड आईपैड्स तब जाते हैं जब बच्चे माँ बाप को परेशान कर रहे होते हैं. एंड मैं भी देख रहा हूँ कि वो बच्चे यूट्यूब पे शॉर्ट्स खोल के शॉर्ट्स कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं कंटिन्यूस. See again, so there a parent has to control a little bit or I would say educate themselves to what to teach that child. Right. Or make sure what that child is watching. There are certain serials in kids only which are rubbish to another level. Right. They are teaching, the serials teach how to hit your own parents and how to use foul language. Not a foul language I would say, but yeah, how to be rude or something like that. This is what I've heard. I've not seen that serial. But and वो kids differentiate भी नहीं कर सकते उस एज में क्या सही है क्या गलत है. Yes. तो हम लोगों का ही काम है as a parent or as an adult of the family or you would say a principal in the school, you have to keep correcting to what to watch and what not to
watch. I mean, I'm not saying it's a principal's job, but yes, definitely हमारा as a parent हमारा ही काम है, or as an adult for your nephew or niece or whatever, it is your job to make sure that they are on the right track. तो वो जो हस्बैंड और वाइफ है जो दोनों भी वर्किंग में है, तो वो कैसे इतना ध्यान दे, चाहे वो जॉब हो, उनका बिजनेस हो. अगर आप आज कल्चर देखो, लाइक मेट्रो सिटीज़ में भी आप देखो, तो सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक वो बाहर रहते हैं. तो वो इतना ध्यान कैसे दे? लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट? You have to plan out things. I'm not against any working parent. Both should be working, yes, but you'll have to adjust. यानी कि जैसे घर का काम सिर्फ बीवी तो नहीं कर सकती, एक पति का भी फर्ज बनता है, right? So it's like that. You have to divide your work. I mean, if one day a woman can come in early and one day the man can come in early, the parent, any of the parent, or there are certain people who take help from their relatives, such as parents, I mean grandparents. So yes, there are ways out, but you need to plan it accordingly. Right. You have to give time to your child too. नहीं तो फिर वो neglected feel करेगा. Then but obvious है वो ये चीज़ क्या, इससे और भी चीज़ों में गलत जा सकता है. You have to keep a watch on them. Right. And I'm not saying it's only a mother's job. It is both the parents. So I have a question regarding the tourism, the F&B and the hospitality industry. Like after the post-COVID scenes, I have seen that a lot of I have heard this from a lot of my friends. Okay, people are preferring to travel less. So how has this impacted the F&B and the hospitality industry? No, I would not say. I mean, if I'm not wrong, the industries have come up big time in today's times. I mean, a lot of people are traveling. अभी जो वो phase था, आप जो बोल रहे हो, वो 21 के बाद वो रहा नहीं है वैसे जैसे आप बता रहे हो. Because the food industry is on a boom right now, and so is the hotel industry. I was yesterday I came back from Mumbai, and I was just going through the rates for different hotels to be put up in. The rates were like 20-25 grand for each room, and the prices are quite on a higher side. Even if I'm planning my March trip right now for Delhi, the rates are sky high. Right. So they are doing well. Yes, there is a recovery mode which is happening right now with the industry. So it's not only due to that, but I would say things overall have gone up higher. The ingredient rates, if I talk about my industry, the bakery industry, जो refined flour, मैदा जिसको बोलते हैं, तो that was 22 rupees 2 years back और आज 35 पे है. So even you would understand कि आप जो आज गेहूं घर के लिए भी खरीदते हो, पहले क्या रेट से था और अब क्या है. Earlier it was 25, today it's gone 35 and 40 and beyond. Right. So things have gone up. And yes, hence the prices have gone up. And now ingredients तो हर एक के अलग अलग रहते हैं. वो क्वालिटी अलग अलग रहती है. तो the better the quality, the higher the price you have to pay. Right. So as I earlier mentioned regarding the F&B and the hospitality segment, so I've heard this from a lot of friends of mine who are into the hospitality and the F&B sector. Students don't want to actually opt in for the hospitality industry as the pay is very less, and corporate में जहाँ पे पहुँचने के लिए people take around 6 years. Hospitality industry में लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए it takes around 12 to 13 years. So what's your thought on this? Well, in this 2 years after COVID, if you see, a lot of people were jobless. Yes. Right. That was not only with the hotel industry, that was with overall every industry that you would go through. So yes, that did happen. And now I'll come to your question again, is why aren't they opting and why the pay scale is less? Okay, so I'm not sure who's giving you that info, but pay scale is quite on a very good scale. The working hours are more. Yes, that I will agree with. The working hours are a lot. The hotel industry and the F&B industry also, like a cafe का आप आज अगर बात करते रहेंगे, तो there are long hours, yes. But the thing is, pay scale का बात नहीं है. People don't want to work. I mean, when I was training, I'm not kidding. I worked for 16 and 18 hours also, back to back. And when I was working in a hotel in Mumbai, and I was in charge of the reception and the reservation department, I worked for 36 hours because there was no reliever for me. All the time,
at night, that little time that you get to rest was the only time I used to be lying down for some time, not actually sleeping also. Okay. So there are times you have to work hard, no matter where you are, even in your own business or wherever you're working. Pay scales, I don't know who you're talking about, but definitely this industry is not that bad with the pay scale part. But people have a lot of expectations these days. They don't want to work for long hours, but they want the pay to be want on higher a pay higher scales. side. And the second most important is they do not have the experience and they want the beginning salary to be the best. Right. So that is the key. Probably some person you must have met who must have told you the pay scale is not good. Is the reason is only one, that is कि आपकी शुरुआत है. आपकी शुरुआत में मेरी शुरुआत अभी ट्राइडेंट बोलते हैं पर ओबरॉयज होटल हुआ करता था तब. तो ओबरॉयज से हुई थी एंड माय फर्स्ट सैलरी आई स्टिल केप्ट इट वाज 250 रुपीस अ मंथ. वो एक ट्रेनी को मिलता है. Right. मेरा आने जाने का ही भाड़ा 500 रुपया था उस जमाने में. तो that's not their fault. You are there to learn. You have to also understand that कि learning period में जैसे आप कॉलेज जाते हो or you go to school, do you pay? Does the college or school pay you or you pay them? So it's the similar thing, but still they give a nice small stipend, which has to be acceptable. You have no choice because you are there to learn. Right. They are putting you on a training program, right? So you don't expect higher salaries to come in that part. But as of today, any manager, if you are comparing your Mumbai rates to Nashik, is not acceptable. I'm sorry. The kind of salary you're getting in Mumbai, or even abroad for that matter of fact, cannot be given in Nashik. But again, the lifestyle that you're having in Mumbai and in abroad, the kind of money that you have to spend for food stay is also again on a higher side. So I've seen people complaining who have gone abroad and come back again saying, salary वहाँ भी नहीं अच्छी. क्योंकि उनका आने जाने का आप बताओगे या खाने पीने का बोलोगे या some recruitment यार person needs a change to go for a movie or whatever he wants to do or visit a restaurant for a nice pleasant dinner, it is expensive. Right. So there's like डॉक्टरेट में है, इंजीनियरिंग में है, like IITs हैं. अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको शुरू में एक अच्छा पैकेज मिल जाता है. तो क्या बेकरी में भी ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कोर्स है जहाँ पे हम जाएं तो एक शुरुआत में एक हमें बूस्ट मिल जाए एक अच्छा सा, ताकि हम आगे बढ़ सकें? Yes, there is. It's not only that. It's how you are presenting yourself, your work, and where have you learned from. Yes, that will definitely count. आपका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है. आज बहुत सारे जन हैं जिन्होंने इसका बैकग्राउंड नहीं है IHM का या whatever, मगर because of their experience they are general managers. So it is an important thing, but at the same time, it will get you good package. Yes, but if just because you're from that school will not count. Your work has to show. Right. So अभी हम लोग आपके ब्रांड PNR के बारे में थोड़ा बात करते हैं. नासिक में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कभी PNR ना गया हो, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो. बट एक चीज़ है जो पता नहीं बाकी लोगों ने नोटिस की है या नहीं की है, बट मैंने बहुत की है कि PNR में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती है. जनरली अगर आप कोई भी ब्रांड्स में जाओ वहाँ पे लोग कोल्ड ड्रिंक लगते हैं ताकि किड्स आए, वहाँ पे एक एंट्री पॉइंट रहता है. बट PNR में कभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थी. तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न ऐसा हो आपके दिमाग में? आप बिलीव नहीं करोगे. नो, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव ब्रॉट ऑन. Yes, we do not sell any aerated water. I mean, like a Coke or a Pepsi that you're meant to mention. Yeah, it's just that I don't see it healthy enough for kids to consume it because of the sugar content in it, the high level sugar content in it. We do not suggest selling that. And we've always stuck to our own iced teas or mocktails we do serve. It's not that I'm not serving it at all. Though we have our own milkshakes also. And now we are planning to launch nice vegan milkshake also, which is going to be on a healthier side. So yes, we are doing our bit to give it back to Nashik. But I'm a little bit against keeping and selling these products. Okay. We don't tend to promote it. कभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आया हो, किसी ने पूछा हो ऑन योर कैफेज? ऐसे पूछा तो नहीं है. I don't think so. अगर हो गए तो not that I'm aware of, or even if there is, we have so many options in beverages, be it hot or cold. I think if I'm not wrong, we are
having an option of around 20 to 25 and above in mocktails or iced teas or milkshakes. Overall, combined together, I'm saying, we have good options available. So I don't think somebody should be missing out on those products. ओके सो मैंने एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च में मुझे पता चला है कि आप एक नेशनल कॉफ़ी चेन को ब्रेड सप्लाई करते थे, बट उसके बाद फिर आपने काफ़ी टाइम बाद ब्रेड सप्लाई करना बंद कर दिया. तो वो क्या कुछ स्पेसिफिक रीज़न था, अगर आप बता सके तो? It's not a bread I used to supply. What you're talking about is entire food supply only. Okay. So we used to supply everything to them, including brownies, cakes, pastries, sandwiches. Yes, and we did put an end to it. Again, there was a reason behind it. आजकल क्या होता है कि अगर एक सैंडविच बना दिया या केक बना दिया, पेस्ट्रीज बना दी, दे पुट इट इन द चिलर ब्लास्टर और माइनस में डाल के उसको फ्रीज कर देते वो एंटायर प्रोडक्ट को फॉर लॉन्गर शेल्फ लाइफ. और वो फिर एक सैंडविच जो आप खा रहे हो उसकी शेल्फ लाइफ सडनली 6 महीने हो जाती है. एंड आई एम नॉट हियर टू से वेदर इट इज गुड और बैड. आई डू नॉट फील इट्स करेक्ट. एंड आई हैव ऑलवेज डन माई बिजनेस वेयर आई हैव टू फील दैट इट इज करेक्ट. मैंने वही चीज़ की है जो मुझे सही लगी है. तो या वी पुट एन एंड टू इट. We used to supply to them for a good 10 to 12 years. And just one day we called it off because we didn't want to get that machine or treat my own Nasikkites with that kind of food. So did it impact a lot on your business? Of course it does. Any business lost has to be impacted, right? Right. I mean, whatever. Be it बोलते ना कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है धंधे में. तो it's right. Obviously any amount, be it a 1 rupee or a 10 rupee or 1,000 rupee. For me, all customers are same. Right. So all the business is also the same, be it big or small. It doesn't work like that. I mean, till date, even today, we supply to lot many cafes and restaurants in Nashik. हम लोग supply करते हैं breads, जो आप बोल रहे थे, industrial bread supply करते हैं, but not in this fashion. I will never I will try and I hope I never have to do this kind of products in Nashik, which are coming and happening very much. There are places who are serving frozen food to another level, but right. I would not want my kids to have that or somebody else's. I love my city. I love my clients and the people who are from Nashik or right. be it anywhere for that matter of fact. I would not encourage anyone to have that kind of food. Yeah, so I have seen a lot of like cafes who serve a lot of cold and frozen food. Like वो start ही करते हैं by serving the customers cold and frozen food. Like people don't understand कि एक restaurant का speciality ही उनका खाना है. And when you serve a lot of frozen food, there are a lot of chances कि वो business आगे जाके close हो जाता है because the customers don't like the taste of frozen foods. Yes, it could be one of the reasons. Shutting down के लिए बहुत सारे reasons है, but yes. People, but I have not seen a big giant, I would say, in Nashik. Even they have 3 to 4 joints of theirs. They are not shut. People are going there. Let's not take names, but there are people who still wanting to do that. Probably they also realize once in a while, if you have that product, is not going to be very harmful, which I also respect. But I know of people in Nashik. Forget only mine. I mean, many cafes are there, many good joints are there, who are serving gourmet burgers, bolo, right. sandwiches, bolo, freshly prepared. तो क्यों हमको उनकी तरफ जाना है? Problem क्या हो जाता है? Not many people are reading the labels now. Not many people are understanding what kind of food is supposed to be consumed. Right. बस एक quick bite बोलते हैं ना, तो fast food है ना, ये fast चाहिए रहता है. Right. रुकना भी नहीं है वो खाने के लिए. See, whenever you are preparing, आज आप घर पे जाते हो, मम्मी माना मेरे को खाना है, तुरंत खाना है, पर टाइम थोड़ा तो गर्म करने के लिए भी लगता है, बनाने के लिए तो और डेफिनेटली और भी लगेगा. So I feel it should be freshly made, freshly served, and even if it's taking a little bit of more time, people should give that time. Talk till then. It is a cafe. Talk, chat with your friends, chat with your family, whoever you have come with. And give time for people to make that artistic food for you. So अभी आपने जैसे हेल्दी का बात किया, तो हेल्दी से याद आता है कि हमारे यहाँ पहले वाइट ब्रेड आता था. हम लोग वाइट ब्रेड खाते. वाइट भी खाते हैं? नहीं आज नहीं. सो हेल्दी से ब्राउन ब्रेड, आप किसी भी शॉप में जाओ या इवन मेरे घर में आज ब्राउन ब्रेड खाते हैं हेल्दी के नाम पे.
बट मैं एक दिन बैठ के रील देख रहा था, सो देयर इज एन इन्फ्लुएंसर जिसने दिखाया कि ब्रांड्स के लेबल पे कैसे जो लिखा हुआ होता है एक्चुअली में वो होता नहीं है, उसका कंट्रोवर्सी भी थोड़ा बहुत हुआ था. सो मैं सामने ही बैठा था, मेरे सामने ब्राउन ब्रेड था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार चेक करके देखता हूँ वो रील देख के. तो जब मैंने वो चेक किया तो वो ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स में कैरेमल शुगर था. अब कैरेमल शुगर तो हेल्दी होता नहीं है, सो इसके पीछे का साइंस क्या है? वेल क्या है, पीपल आर बीइंग चीटेड. यस, आई एम अवेयर ऑफ दैट. आई वुड नॉट टेक नेम्स, बट एटलीस्ट पीएनआर इज नॉट डूइंग दैट विथ यू. हमारा लेबल आप पढ़ लो आज भी. वी हैव नेवर यूज्ड कैरेमल शुगर. वी हैव ऑलवेज यूज्ड मॉल्ट पाउडर टू गेट द कलर. और कैसा कंसेप्ट क्या है, आप घर में भी चपाती बनाते हो, क्या वो पूरी ब्राउन तरीके से होती है? नहीं होती है. नहीं, उसको वाइट, बट एक वो ब्राउन ब्रेड को एक टैग लग गया है, वो ब्राउन रहना चाहिए. राइट, ब्राउन इज इक्वल टू हेल्दी. ब्लूबेरी भी आज ब्लू नहीं है. यू गेटिंग माय पॉइंट. पर एक कंसेप्ट बैठ गया है कि मुझे ब्राउन ब्रेड ब्राउन कलर में तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए वो कलर ऐड किया गया है. एंड एक्चुअली व्हाट इज ब्राउन ब्रेड? इट इज, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर कंसिडरिंग ब्राउन ब्रेड एज अ हेल्दी bread. Might be some influencer or some... No, tell me one thing. I think these are Where because is of, it written that brown bread is a healthy bread? It's just a conception. You have developed that concept. Right. People are not, who are selling it have not, right? So if I'm saying a whole wheat bread, then I will agree with you. Yeah, I think ये थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग की वजह से भी हुआ है. Advertising में तो आजकल कुछ भी दिखा सकते हो. Yeah, but what is the practicality once a person checks that label? See, क्या हो जाता है? Brown bread. Okay. Now that concept has been developed कि हेल्दी होना चाहिए. तो ब्राउन ब्रेड का कंसेप्ट क्या हुआ था? आप पूरा मैदे का ना यूज करके, ओके, आधा गेहूं आधा मैदे से बनाइए. हमारी रेसिपी आज भी ज्यादा गेहूं है और मैदा कम है, मगर आप जो बाकी के जगह जाएंगे और देखेंगे तो इट्स मैदा इज ऑन अ हायर साइड एंड होल व्हीट इज ऑन अ लिटिल लोअर साइड. सो या मैंने भी देखा एक्चुअली ब्राउन ब्रेड के जो पीछे का लेबल रहता है, आई रेड इट वंस एंड उसमें लिखा था कि इट्स 5% होल व्हीट एंड रेस्ट ऑफ इट इज मैदा, पाम ऑयल, ये सारी चीजें लिखी हुई है. नहीं, हम लोग वैसे नहीं करते. There are recipes. That is what happens. कि you have to know your business. You study about your business. ये जो आप बता रहे हो, हम लोग ने 100% whole wheat bread भी रखा है, which is on a higher end, expensive. और उसमें भी malt powder ही गया है. There is no caramel added to it. So you should know what you are selling, and you should also know what you are buying. I'm good and I'm glad that you all are checking these kind of reels. I'm really happy that you said कि I saw the packet, मगर आपने पियानो का पैकेट फिर देखा नहीं है, यानी कि पियानो का ब्रेड देखा नहीं है आपने. आप पियानो का ब्रेड देखिए, आपको ये सारे चीज नहीं दिखेंगे उसमें. 100% whole wheat is 100% whole wheat. And the brown bread what we eat, I missed out on that topic. So brown bread launch करने का reason क्या था from the bakers कि पूरा गेहूं से तो भी नहीं, अपना पूरा मैदे से नहीं बनाते, at least some क्या बोलते हैं, होल व्हीट गया तो बेटर भी है. सो यस, प्रपोर्शन नोबडी हैज डिसाइडेड कि इतना होना ही चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए. सो एटलीस्ट रादर देन 100% व्हाइट ब्रेड, इफ समबडी इज गिविंग यू चलो 30% अंदर गेहूं डाल के भी दे दिया, तो व्हाट इज हार्म इन इट? एंड दे आर अलाउड टू सेल इट बिकॉज दे आर कॉलिंग इट अ ब्राउन ब्रेड. आपको हेल्दी ब्रेड तो नहीं लिख के दे रहे, 100% होल व्हीट ब्रेड तो लिख के नहीं दे रहे ना. हमारे यहाँ हमने लिखा हुआ है होल व्हीट ब्रेड, 100% होल व्हीट. Right. And that is the reason it falls expensive also, because that recipe, what we make it, I mean, the way we make it, that ingredients are very on a higher side to make that kind of bread. That is the reason. So coming back to PNR, I wanted to ask you, what is that one thing in your business, like आपके जो अभी current business में या last आपका इतने साल का जो experience है, what is that one thing you hate about your business? Like hate is a very big word. बट वन थिंग दैट जो आपको आपके बिजनेस में पसंद बिल्कुल भी नहीं है. नहीं, I would, hate is a very strong word for me. I don't use that word much, but I would say what I dislike people doing these days is, yes, what you all just got the topic up, reading the label. आप पढ़ो. अगर चलो हम लोग अभी और चीज भी क्या करते हैं, हम लोग फ्रेशली बनाते हैं सारे प्रोडक्ट्स. हम लोग ने हैप्पी आवर्स भी शुरू किया है. तो हैप्पी आवर्स क्यों शुरू किया है? बिकॉज आई एम ऑल्सो अगेंस्ट थ्रोइंग फूड, जो वेस्टेज बोलते हैं जिसको. अगर ये आज बिका नहीं है तो ये वेस्टेज में जाएगा. तो व्हाट वी डिसाइडेड इज एटलीस्ट विल गिव सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट टू आवर क्लाइंट्स. सो वी स्टार्टेड विद हैप्पी आवर्स. तो उसमें भी आपने चेक करना चाहिए कि आपने क्या पैकेट उठाया है,
आपको अगर डिस्काउंट ऑफर किया गया है, मगर आप कंज्यूम कैसे करने वाले हो, कितने दिनों में कर लोगे? सपोजिटली मेरे आज शेल्फ लाइफ कुकीज का 30 डेज है और 20th डे पे मैंने उसके ऊपर 10% डिस्काउंट का टैग लगा दिया है, तो आपने पीछे चेक किया एक्सपायरी डेट का क्या है, विल आई बी एबल use it within 10 days or not? Will I be able to use that cake within a day or two or not? हर एक चीज पे एक एक्सपायरी लाइफ रहती है, आपने वो चेक करके लेना चाहिए. सो हैविंग वेस्टेज इज नॉट, वेस्टेज को बचाने के लिए हैप्पी आवर्स इज नॉट अ रॉन्ग मार्केटिंग स्किल, दैट इज द करेक्ट स्किल. आई जस्ट वांट पीपल टू बी अवेयर नाउ. Be aware of what you're eating is very important. Right. Also, what is the most important is अगर आप एक ड्राइवर को भेजते हो सपोजिटली केक खाने, अभी दिस इज व्हाट आई वुड से, आई नॉट हेट बट आई वुड से, एक ड्राइवर को अगर आप केक लेने भेज रहे हो और आप बोलते नहीं हो, यू आर नॉट बीइंग स्पेसिफिक, राइट? आई हैव लर्न टू बी स्पेसिफिक इन लाइफ कि ये यहाँ से ही लेके आना है, तो वो फिर शॉप में जाके वो चीजें उठा के लेके आएगा. राइट. मगर हम लोग अगर स्पेसिफिक नहीं रहते तो एक बेचारा ड्राइवर उसकी सैलरी के हिसाब से एक रेगुलर केक शॉप में जाएगा और वो रेगुलर केक आपके लिए उठा के इधर से लेके आने वाला है. देन यू विल ओनली स्कोल्ड हिम कि आप क्या लेके आए हो. राइट. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई एंड बी अ लिटिल स्पेसिफिक. पहले क्या होता था, व्हाट आई मिस, आई वुड नॉट से आई हेट, बट आई वुड से आई मिस people coming to our premises and buying. अभी क्या हो जाता है, ड्राइवर आके खरीद के लेके जाता है, तो उसको भी पता नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना है. राइट. कम स्टेप आउट. हम लोगों ने क्लाउड किचन नहीं खोला, हम लोगों ने बहुत बड़े कैफेज खोले, एंड आई थिंक माई ईच आउटलेट वुड नॉट बी लेस देन 800 square feet. आई थिंक द स्मॉलेस्ट इज एनडी पटेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बाकी सारे इतने बड़े शोरूम्स क्यों खोल के रखे, कैफेज क्यों खोल के रखे, नॉट शोरूम, कैफेज. The reason is we want people to come in. A lot of things are being ordered online also. Things are changing these days. You don't want to step out of your house. It's the wrong concept. I mean, yes, do step out. Not every day, I would say. ठीक है, I understand daily outside you cannot, I mean, you either afford or it's not wise enough to go or whatever your ways of life are. I understand, but yeah, you go get your own veggies, you go get your own fruits, you go get your own right. You know, it trains you also to what market में क्या चल रहा है. कुछ तो यार पहले कैसे जाते थे हम लोग, खुद मार्केट जाते थे, सब्जी लेके आते थे, सब्जी वाले से एक बात होती थी, यू नो, एक इंटरेक्शन होता था. आज की तारीख में वो कहाँ हो रहा है? I mean, I always request my managers also to keep a smiling face. वो बेचारा किस मूड में आया है अपने यहाँ, तुमने अगर विश करके एक स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोल देगा, शायद उसकी थोड़ी सी सुबह चेंज हो जाएगी. अगर वो अपसेट रहेगा या whatever, a smile gets a difference. So lot of things are missing out these days. टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली हमारा काम आसान कर दिया है. लाइक टेक्नोलॉजी ने हमारा कन्वीनियंस बढ़ा दिया है, बट साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी ने हमको और आलसी भी बना दिया है, लेजी भी बना दिया है, एंड वी डोंट रियलाइज दैट वी आर स्पेंडिंग मोर बिकॉज ऑफ दैट. राइट. I'm not against any delivery person, but if I'm not wrong, I have heard the CEO था Zomato का ही, who said right. Recently in his interview that you are paying a lot of money just to get food delivered to your place. If you go and visit that outlet and sit and eat there, it would be cheaper. Or if you call up that person, I mean, I don't know if everybody is delivering or not. If you ask that particular restaurant or a cafe or any food joint, क्या आप डिलीवरी करते हो? आप एक बार गूगल से उसका फोन नंबर निकाल के ट्राई कीजिए ये करना भी. You are saving your own money. Otherwise, the markup is as good as 30-35%, which people are not realizing, it seems. Or they have that money and they want to spend. So then it's okay. Yeah, I've seen लोग बहुत आलसी हो गए. Like people don't want to call people and have a conversation. People just want to have a text and text पे सारी बात हो जाए. People don't want कि किसी से interact करना पड़ेगा and वो आगे questions पूछेगा. इससे अच्छा फटाफट text कर दो and उसका जवाब आ जाए. Same thing with Zomato. Like people just don't want to call the restaurant and order. इससे अच्छा फटाफट उस पर ही डाल देता, वो किसी से interact नहीं करना पड़ेगा और directly खाना घर पे आ जाएगा. Not a much text person to be honest. मुझे WhatsApp पे एक chat करना, उससे अच्छा मैं phone उठा के बात कर लूँ. I prefer that. Definitely. And I have always done this. I mean,
मिलना है दोस्त को तो सीधा मिल लेते हैं, फोन पे भी क्या बात करनी, राइट? राइट. तो इट्स आई प्रेफर टू बी वोकल. तो जैसे अभी आपने बोला 35% मार्कअप फी, बट जैसे मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं या फिर रेस्टोरेंट्स इस इंडस्ट्री में, सो वो शायद वहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि उनको वहाँ विजिबिलिटी चाहिए, उनके पास ऑडियंस है, वो इतना स्पेंड नहीं कर रहे होंगे, बट फॉर द विजिबिलिटी पार्ट वो वहाँ पे होंगे. उनका शायद प्रॉफिट मार्जिन भी बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन उनको वहाँ रहना पड़ रहा है क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे है. In a ways, you are right. Yes, there is a big time visibility that comes. But यार अगर तेरा खाना अच्छा रहा ना, तो I don't think you require any platform, to be honest. I mean, I have seen lot of earlier कहाँ थे platforms ये? चलते थे ना सबके धंधे यार. वही तो. ये तो अभी आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है. हम लोग के ज़माने में when I started 22 years back, what platform did I have then those days? Nothing. So what was Zomato also that time? They were just an application when they had begun कि आप लोगों के यहाँ वो कैफे बुक करेंगे, रेस्टोरेंट्स के लिए बुक करेंगे, आप उसको 5 स्टार रेटिंग दो और ये करो. उस हिसाब से शुरुआत हुई थी, राइट? They were not into deliveries. Later on they came into the delivery section as well. So that is what my point is. कि पहले कहाँ कौन से ज़माने में the food spoke for itself. The people, I mean, it was word of mouth. आपके लिए नेसेसरी नहीं होता है. अगर आपका खाना अच्छा है, आई डोंट सी अ ठेले वाला भी होगा या रेस्टोरेंट वाला भी होगा या कैफे वाला भी होगा. इफ द फूड इज गुड पीपल विल ट्रैवल. हम लोग भी ढाबे पे जाते हैं यार, ऐसा नहीं कि ढाबे का खाना नहीं खाता है. वी डू गो टू ढाबाज, राइट? व्हाई? द फूड इज गुड. इफ द फूड इज गुड पीपल विल कम टू यू. So do you support or not the cloud kitchen concept? Cloud kitchen. So you're talking about if there is a cloud kitchen, obviously there will be delivery only, right? Right. So there will be nothing else apart from that. Right. Business-wise, yes. But I prefer to go into a restaurant and eat there. जो खाने का फ्रेशनेस है, वो गरम गरम खाना भी जो हम लोग खाएंगे, यार एक पिज्ज़ा बना दूंगा मैं और आपको घर तक डिलीवरी आती है, वो ठंडा भी हो जाएगा फॉर सम ऑड रीजन. हाउ इज इट गोना बी टेस्ट वाइज? हाउ कैन इट बी द सेम? जो चीज़ मेल्ट हुआ है पूरा, और आप जब तक आता है अपने घर पे अगर वो ठंडा हो गया रहेगा तो फिर क्या मज़ा है उसमें? और आप जब रीवार्म करोगे इट लूजेज इट्स चार्म. सो आई डोंट सी द फूड दैट यू आर हैविंग. आई फील इट शुड बी पाइपिंग हॉट, straight out of the oven or straight out of the gas range and served to you. I feel that is better rather than so I'm saying again, business wise cloud kitchen they are doing wonders, of course. It's good sign, but ethically I feel it's always better that we go to a restaurant and eat or go to a cafe and eat. यार मैं तेरे को कॉफी पार्सल तो नहीं कर सकता हूँ ना. कॉफी जब हॉट रहेगी तभी तो मजा आएगा ना. फिर तू माइक्रोवेव में गर्म करके पीने वाला रहेगा, वो फायदा क्या है? वो टेस्ट थोड़ी मिलने वाला है. फिर लोग बोलते हैं कि टेस्ट नहीं आया है, बट हो सकता है कि वो चीज़ में टेस्ट आए ना, कि क्योंकि डिलीवरी के बाद वो चीज़ टेस्ट दे ही नहीं सकती है. See, French fries will get soggy by the time it reaches you. वो crispiness कहाँ रह सकता है? खाते हैं हम, मगर that is a compromising. अभी compromise करने का बहुत आदत लग गया है. I don't want people to compromise with their food habits. That's not me. फारसी हूँ यार. खाना तो एकदम तबीयत से खाना है. Right. गर्मा गर्म खाना है, फ्रेश खाना है. So like talking about Swiggy and Zomato, like there are two strategies I think people are using right now. Like पहला तो एक है कि लोग आते ही स्विगी जोमेटो पे इसीलिए है कि उनके बिजनेस को एक बूम मिल जाए. एंड यू नो एक सर्टन टाइम के बाद जब पीपल ऑर्डर अलॉट तो वो सर्टनली प्राइसेस बढ़ाना चालू कर देते कि पीपल स्टॉप ऑर्डरिंग ऑनलाइन एंड स्टार्ट कमिंग टू द रेस्टोरेंट. एंड सेकेंड आई थिंक एक स्ट्रैटेजी लाइक एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट लाइक in the start they were selling on Swiggy and Zomato and they stopped their ordering उन्होंने ऑफ कर दिया था. एंड उनका खाना पर एक्चुअली में इतना अच्छा था कि मैं फिजिकली जाके उनके आउटलेट से फिर खाना पिकअप कर लेता था. So you understand what my point is? It's not entirely bad, the concept of delivering. Please understand करो कि हम जब कर सकते हैं, when we can step out, why don't we? Is my point. Right. क्योंकि काफी बार मेरे घर पे कुछ सडन गेस्ट आ गए, अब मेरे को बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, शायद बिकॉज ऑफ सम ऑड रीजंस. राइट. कुछ लोगों को चाहिए कि घर पे ही खाना है बिकॉज आई हैव वर्क, मेरे को काम आज बहुत है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्टेप आउट, मेरे को मेरा कंप्यूटर पे ही काम करना है, लैपटॉप है नहीं मेरे पास, डेस्कटॉप ही है,
मुझे घर पे ही खाना पड़ेगा. There are times where my son is alone at home. Probably he'll order food online. He's not wrong. So the service is not wrong. I'm saying, please understand, compromise मत कीजिए. अगर जा सकते हो तो why not? Because what Swiggy and Zomato is doing is not wrong entirely. यार, that is their business. Right. How are they wrong in it? Right? Right. जैसे कोक तो बोलता है ना हमारे इसमें इतना शुगर है. I've seen a video, a CEO of Coke saying himself कि हमारे इसमें सबसे ज्यादा शुगर है. राइट तो जब वो भी बोल रहे हैं मगर हम तो भी तो कोक पी रहे हैं. तो ये भी है ना सर्विस के लिए. हम लोगों ने तो आपके लिए खोला है. इट्स नॉट अ क्लाउड किचन राइट. पफ्स एंड रोल्स आपके लिए क्या है, कैफे ही तो है ना. आप जाके खा सकते हो. हाँ देयर आर टाइम्स जब आप नहीं कर पाते हो. जैसे आपको अगर एक कोई ब्रेड चाहिए रहेगा और आपको ब्रेड मंगाना है, इधर यू विल सेंड योर ड्राइवर और यू विल आस्क स्विगी टू गेट इट फॉर यू. राइट. So how is that wrong? It's not wrong entirely. I would just say change the perspective towards eating. Eat quality food. Read your labels. Step out with your family, your loved ones, your friends, and make the difference. I'm saying that's it. इसलिए इस पॉडकास्ट का नाम है योर पर्सपेक्टिव, ताकि हम आपके पर्सपेक्टिव से जान सकें. और एक 10 साल पहले या 20 साल पहले जो इस इंडस्ट्री में जो आना था वो आज कितना फिजिबल है आना. सो फॉर एग्जांपल आपको अराउंड 22 इयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में. सो उस टाइम पे जो था मार्केट में और आज जो है, सो आज कितना फिजिबल है. कोई एंट्री बैरियर है क्या आज एक बेकर बनने में? या लाइक कोई चैलेंज है लाइक इस इंडस्ट्री में आने के लिए? लाइक फॉर एग्जांपल पीएनआर लेवल का अगर किसी को बिजनेस बनाना होगा तो कोई करंटली कोई चैलेंजेस वगैरह है उस बंदे को, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर कोई चैलेंजेस वगैरह आप शेयर कर सकते हो? देखिए पहले तो आई वुड से इफ अ चाइल्ड व्हिच यू सेड वांट्स टू गेट इनटू अ बेकरी इंडस्ट्री में वो कैसा करे, आई फील भले पैसा हो नहीं हो वो तो बाद में की बात है. एजुकेट योरसेल्फ विद नो मैटर व्हाटएवर बिजनेस यू आर गेटिंग इनटू. You should make it a point that whatever industry you are getting into, you should know about that industry. You should learn about that industry. अगर आर्किटेक्ट बनना है, अगर एक बिल्डर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग का तो करना चाहिए ना कुछ आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहिए. इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहिए. अच्छा डॉक्टर आप ओवरनाइट ऐसे तो नहीं बन सकते हो ना. बराबर ना. उसके लिए भी एक कॉलेज में जाके आपको अपने आप को people do spend that much of time and that is also less. They also keep going for trainings to learn the new technology and all that. Right? So learning has never stopped. So obviously first things first, best example डॉक्टर का ही है यार. लेकिन आजकल जो हाउसवाइफ्स हैं जिनके किड्स अभी स्कूल जाने लगे हैं या किसी कोई बिजनेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, तो वो होम केक्स बनाते हैं. अब उन्होंने तो कोई डिग्री की नहीं है बट स्टिल उनका टेस्ट तो एक अच्छा टेस्ट रहता है बहुत. Okay, I don't know how you've been to PNR, right? Right. We are having product range, I think, which would be more than 100 and above. Can a home baker do that? Definitely not. Definitely not, right? So what you're talking about, a home baker has done some speciality probably in cakes only or cookies only or muffins, cookies, cakes all placed together. I understand. मगर वो क्या bulk quantity में quantum में इतना बना के दे सकेंगे? No. So I mean, it's not that I don't take them as a competition. I take everyone as a competition. मेरे लिए एक हाउस बेकर कंपटीशन नहीं है, मैं कभी नहीं बोलूँगा. या एक छोटा बेकर भी नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है. Even a small kid, be 10 years old, can teach me a lesson about life. And I will listen to him. I mean, even today, my son tells me something that, you should try this out. This is happening a lot in market because he's out on daily basis. He's out going to cafes. So he's going out into restaurants. He's traveling. He knows what is in trend. He suggests to me कि आप ये क्यों नहीं शुरू करते, आप वो ट्राई कीजिए, आपने इधर खाना खाने को जाना चाहिए, because he knows I'm a foodie. So yes, I do listen to him. So listen to everyone. Learn whatever you can about this industry and get into it. Home bakers को जो आप बोल रहे हो, यार उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी से तो सीखा ही है. ऐसा मैंने भी नहीं देखा कि उन लोग ने कुछ सीखा ही नहीं है. I had a friend of mine who's now in Australia. She had done a proper course यार, and then she was a home baker. So ऐसा नहीं कि home bakers ने कोर्स ही नहीं किया है. I think पॉसिबल नहीं होगा. आजकल यूट्यूब यूनिवर्सिटी तो बहुत चल गया है. आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट. आई मीन अच्छी बात है यूट्यूब पे लोग पुट अप करते हैं, बट दैट यू कांट स्टार्ट अ बिजनेस. आई एम सॉरी टू से, नो यू कांट. देखो क्या हो जाता है, एक ब्रेड जब बनता है और ब्रेड जब खराब होता है
तो जो बनाने वाला है ना उसको पता रहना चाहिए कि खराब भी क्यों हुआ है। यू गेटिंग माई पॉइंट? उसका एजुकेशन इसलिए होता है, सिर्फ बनाने के लिए बना दिया, मगर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात होती है, उसका स्प्रिंग जो रहता है, बाउंस बैक, जो एक स्पॉन्जीनेस जो एक ब्रेड के लिए रखना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ वुड यू नो? यूट्यूब वीडियो है, थोड़ी सिखाएगा आपको। You need to know the science. यू नीड टू नो, देयर इज साइंस बिहाइंड इट, एंड देयर इज, हम लोग के बेकरी कोर्स में न्यूट्रिशन और साइंस वाज अ सब्जेक्ट, एंड दैट इज हाउ वी गेट टू नो कि हमारा आज ब्रेड क्यों खराब हुआ है, या इसको स्पॉन्ज को जो ये मिलना चाहिए था, वॉल्यूम, फ्लफीनेस जो बोलते हैं, बिकॉज इट्स एयर, यू आर विपिंग, एंड व्हाट इज गेटिंग डेवलप्ड? एयर in the sponge. So why is that happening, or why has it come down? What did I go wrong with? That answers will only come from learning, and that answers will only come from school. Right. It's not going to be shown on YouTube. बनाने का ठीक है यार, खराब हो गया तो क्या करेगा? पर एक चीज़ है जो ना आप स्कूल से सीख सकते हो ना यूट्यूब से, वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, और वो है मिस्टेक। सो अगर किसी को 6 महीने हुए हो, 1 साल हुआ हो, तो उसने शायद उतना बड़ा मिस्टेक नहीं किया होगा, या वो पॉइंट पे आया नहीं होगा। और जैसे आपको तो 22 ईयर्स हो गए एंड यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, सो आपको कभी वो मिस्टेक तो हुई होगी। सो वो मिस्टेक जो जिससे आपको शायद बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, वॉट एवर यू कैन थिंक, द मिस्टेक मे बी आपका वो बाय चॉइस हुआ हो या मिस्टेकनली वो हुआ हो, तो वो अगर आप शेयर कर सके। मिस्टेक आई हैवंट शेयर्ड। सो बेसिकली मिस्टेक क्या हुआ था, आई विल टेल यू। व्हेन आई स्टार्टेड इन 2001, when my father was also along, and I lost my father in 2003. Till then my brother was not playing an active role in that what do you say, the business. But after my father passed away, my brother came into the picture and started playing an active role with me, and that time is the time he told me, I think your products are a little big in size, and hence obviously the pricing is higher, and this is not something Nashik could adapt to. The price range was high, obviously, because the product size was big. So what he suggested was reduce the size of the product, reduce the price, of course, along with that, and see how it works. And that did click. That suggestion, what my brother gave, did have a lot of impact on our sales in a positive way, I'm saying. Yes, it did affect. In a very, I mean, within a month, the sales started going up big time. So yes, that is one place where I would say I would gone wrong, and repeatedly I went wrong in COVID, you can say, but I was not entirely wrong. I shut down my place for 3 months during COVID, and that was all because of the love for my Nashik clients, because that was a basic amenity, the breads what I make and the bakery industry. But I didn't want to start because I didn't want my clients to get harmed, because there are a lot of people and a lot of people are regulars at PNR. They would want to step out because food was a challenge that time, and getting what you want, like a sweet tooth kind of a product, was a challenge that time to get, and people would want to step out for it, and I didn't want them to get harmed, because I take my clients like my family, like my loved ones. We had kept it shut for 3 months, and we incurred losses because of that, no doubt about it. But that was still understandable, and it was all okay with me. And it's not only the clients, but it was also for, what do you say, my staff, for their helping also. सो PNR को आप कैसा कंसिडर करते हैं? लाइक इट्स एन एक्सपेंसिव बेकरी, एज PNR इज अ बिग नेम, बिग प्लेयर ऑफ द इंडस्ट्री, और इट्स अ पॉकेट फ्रेंडली? Well, I would call PNR at certain ways a pocket-friendly product. I mean, हमारा जो अभी ये महात्मा नगर में एक आउटलेट है, या all the outlets in fact, देखिए, we have kept pocket-friendly from the very beginning actually. Cakes में I would not agree entirely, but yes, but with the other products, it is pocket-friendly. The coffee part, if you go to see, the way we have priced our coffees or mocktails or milkshakes, they're very pocket friendly. In fact, a lot of students are repeated customers over the period and years. I mean, I have clients who have been to PNR as youth, got married because of PNR also. I have a lot of people in hand.
And it feels good. The feel factor is very good when you hear कि अपने PNR पे बैठ के इनका fix हुआ है. Lot of people have started their new ventures from PNR. Business meetings हो रही है और वहाँ से फिर वो ऊपर आए हैं. Right. एंड पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता तो ये सारे चीज़ इतने स्टूडेंट्स और यूथ मेरे यहाँ आते नहीं थे, क्योंकि यूथ जब आप बोलते हो उनका पॉकेट मनी बहुत टाइट रहता है, राइट? सो इफ दैट इज द केस आई वुड नॉट से पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा हमारा आउटलेट. इट इज़ अ पॉकेट फ्रेंडली आउटलेट एंड पीपल हैव डेवलप्ड इट इज़ थिंक कि भाई बहुत एक्सपेंसिव होगा क्योंकि बड़ा शोरूम है. बड़ा शोरूम है क्योंकि बैठने की जगह बड़ी है. बड़ा शोरूम है बिकॉज टिल डेट इट्स बीन 22 years अंडर वन रूफ इतने सारे बेकरी के प्रोडक्ट्स और केक्स एंड कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट्स आपको आज तक 22 साल में मैंने तो कोई और बेकरी नहीं देखी है जो इतने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में है. बीट वेज एंड नॉन वेज बोथ आई एम सेइंग. इनफैक्ट वी आर लॉट इनटू मैक्सिमम प्रोडक्ट्स दैट वी हैव टुडे आर वेजिटेरियन. एगलेस ही है. Forget एगिटेरियन भी नहीं बोल रहा हूँ, वेजिटेरियन बोल रहा हूँ. व्हेन आई मीन वेजिटेरियन आई से वेजिटेरियन, इट मीन्स वेजिटेरियन. उसमें अंडा भी नहीं आ सकता है. सो एगिटेरियन इज डिफरेंट, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. सो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टुडे व्हाट यू आर सीइंग एट PNR आर 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स. मैक्सिमम आई एम सेइंग इफ यू सी द परसेंटेज. जिसमें अंडा भी है वो अलग बताया गया है कि वो उसका नॉनवेज का मार्क तो आता ही है. पॉकेट फ्रेंडली भी है. हाँ, केक्स में अगर आप बताते हो आई एम अ लिटिल बिट I would say not much of a difference also, but yes, cakes में हम लोग थोड़े expensive है. Find out the reason why. You know, सिर्फ आप competitive market है और मुझे compare करोगे वो नहीं हो सकता है. उसके लिए आप ingredients भी देखिए, quality भी देखिए, बराबर है ना? You have to compare an apple to apple. You can't tell me कि मैं एक regular phone से हाई एंड रेंज का फोन कंपेयर करूंगा तो चलेगा क्या? राइट. ओके, वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, ABS गाड़ियों में, हर एक की गाड़ी में रहता है ना. मगर एक छोटे कार जो रहती है कंपनीज की, उसके ABS सिस्टम में, और एक बड़े कार, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स हियर, बड़े कार में आप जब करोड़ों रुपए डालते हो, वो कार का ABS सिस्टम और एक 10 लाख की गाड़ी का ABS सिस्टम में फर्क है बॉस. भले वो सेम ही है. राइट. दैट ABS सिस्टम इज देयर इन बोथ द कार्स. मगर isn't there a difference in it? Right. So that is the thing. हर घड़ी टाइम दिखाता है. कोई रेगुलर भी खरीदते हैं और कोई करोड़ों की भी खरीदते हैं ना. वैसा है ये. Because you know what you're spending for, right? So that is the case. लग्जरी भी है. जैसे आप कार्स में लग्जरी भी देखते हो, तो केक्स में भी वैसा देखने का आप नजरिया बदलिए थोड़ा. I know there are people who say कि आपके केक्स बहुत एक्सपेंसिव है, because my ingredients are to that a level. To kind of, अभी मेरा, I would not say कि कोई inferior वापर रहा है नहीं वापर रहा है, I don't want to get into that part, but I'm just saying with what I am doing. We are using chocolate that is from Barry Callebaut, that is from Belgium. We are getting our, what do you call, Amarena cherries, which goes into our exotic Black Forest cake, or even the blueberry. We are getting it from Belgium again. Our certain flavors for cakes are coming from Italy. This is going to be expensive यार. अगर मैं ब्लूबेरी केक दे रहा हूँ तो वो निवेल्स करके एक विलेज है, जैसे अपने यहाँ से सिन्नर 1 घंटे की दूरी पे, वहाँ ब्रसल्स से, बेल्जियम में ब्रसल्स से 1 घंटे की दूरी पे निवेल्स करके एक गांव है, वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं. तो by the grace of God, I've got good friends also who are importers. I've always mentioned him in my interview. Prakash करके है, who's a Mumbai's distributor. He makes sure that I even go to learn every 2 or 3 years. भले मैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता हूँ उसका वो बात अलग है, बट लर्निंग तो एक मेरा हो जाता है. सेकेंडली, आर इंग्रेडिएंट्स आर ऑल्सो, आई गेट टू नो कि ये प्रोडक्ट आया है, आई नो हाउ टू प्ले अराउंड विद दोज प्रोडक्ट्स बिकॉज आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड. सो आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग नाउ. क्यों एक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. मैं ये प्रोडक्ट कहाँ किस चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता हूँ इज वॉट आई हैव लर्न. ये यूट्यूब ने नहीं सिखाया मुझे. इज वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई बेकरी कोर्स, माई होटल मैनेजमेंट कोर्स, विच बोथ आई हैव डन. दिस प्लेज अ मेजर रोल. The staff that you are having, the kind of big showrooms that you are having, infrastructure cost है यार. मैं क्या क्लाउड किचन बना के आपको घर पे नहीं भेज रहा हूँ. Right. You know, मेरे एक्सपेंसेस कम नहीं कर रहा हूँ. मैंने आपको उतना AC शोरूम्स भी है. हर एक चीज़ का एक कॉस्ट है आज. तो वी हैव टू रिमूव आवर कॉस्ट, बट ऑब्वियस है. एंड अबाउट दैट, इवन चलो दैट इज नॉट अ चैलेंज फॉर मी. इंग्रेडिएंट्स तो आप देखोगे कि नहीं देखोगे दोस्त.
अगर if I'm using the best quality ingredients, I'm going to charge you like that. I don't care whether somebody else is using or not. मैंने वो comparison करना भी नहीं है मुझे मेरी क्वालिटी तो कायम रखनी है ना, तभी तो मैं 22 साल से टिक रहा हूँ, नहीं तो मैं बंद कर देता था. Right? You said there are a lot of closures happening, right? Right. So PNR को भी हो सकता था. Why is PNR still there where it is? Every year, we are not compromising on quality. I would say every year we are growing with our quality. In fact, कहीं ना कहीं कुछ improvement आता है तो we are opting always for that higher ingredient, not the regular one. Right. बट जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, उसके जैसे प्रोडक्ट्स बड़े होते हैं, तो एक चीज़ होती है हेल्दी और हाइजीन. Yes. ये दो चीज़ें कभी कभी शायद कॉम्प्रोमाइज कर देता है एक बिजनेस, नॉट द कैरेक्टर द ओनर, बट एक बिजनेस को शायद कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. तो वो चीज़ पीएनआर कैसे मेंटेन कर रहा है एक हाइजीन? Every Wednesdays, my bakery is shut. You can come and check any given point of day or time. And that shut is not because of a weekly off. That shutdown is only because of hygiene purpose. Every week. Not that daily नहीं हो रही है hygiene. Daily तो होती है. This is a thorough deep cleansing actually. Happens at our factory every Wednesday. So that is there. सिर्फ केक डिपार्टमेंट बंद नहीं हो सकता है. हम लोग वो नहीं करते हैं. मगर उसकी भी हाइजीन जिस दिन होती है, हम लोग दूसरा रूम यूज़ करते हैं और वो उसका रूम का भी हाइजीन हो जाती है. There has to see things are, that is the reason I'm saying ना, पेस्ट कंट्रोल भी ज़रूरी है, हाइजीन भी ज़रूरी है, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स भी ज़रूरी है. कुछ ना कुछ ये सारे मेंटेन चीज़ करने के लिए आपको तो कुछ ना कुछ प्राइस तो भरनी पड़ेगी ही ना यार. Right. यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो फूड पॉइजनिंग होना शुरू हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. यू माइट स्पॉइल योर हेल्थ. खाना खाने के बाद आपकी तबीयत तो तुरंत खराब होनी ही होनी है. मगर आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ खाना खाने का, यहाँ खाने की वजह से तबीयत खराब हुई है. आप जनरली आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जस्ट ब्लेमिंग दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में. बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि इधर खाना दैट एंटायर डे ऑल्सो थिंक ना आपने क्या खाना खाया है. आप इमीडिएटली किसी को और को तो ब्लेम नहीं कर सकते हो. राइट. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बट एक सर्वे में देख रहा था ऑनलाइन, कितना जेन्युइन था या नहीं ये तो नहीं पता मुझे, बट उस सर्वे में ये था कि फूड पॉइजन जो है वो सबसे ज्यादा एक्चुअली हाउस होल्ड से होता है. Yes, अपने ही घर से. Yes, it is true. I'm not blaming mothers. I'm sorry, mama, I mean, like, or my wife for that. But yeah, we see what happens is we are not क्या बोलते हैं यार, trained to have that knowledge yet. मेरे को ये एक लैकिंग जो है ना वो निकालनी भी है. तो अच्छा हुआ आपने ये टॉपिक भी निकाला हुआ है. क्या हो जाता है, हम लोग अनियंस कट करके फ्रिज में रख देते हैं. ओके. जो चीज़ें फ्रिज में नहीं होनी चाहिए वो होती है. सैलड्स जब हम लोग कट करके फ्रिज में रख देते हैं, सैलड्स हैव्स टू बी कट एंड कंज्यूम्ड इमीडिएटली. अदरवाइज देयर आर टॉक्सिन्स दैट डेवलप व्हिच इज बैड फॉर यू. सेम इज विद द अनियंस. जैसे आपको चाहिए आप फ्रेशली काटो और खा लो और कंज्यूम करो और कुकिंग में यूज करो. अगर नहीं कर रहे रह के कुछ बच गया रहेगा तो प्लीज कवर इट अप, क्लिंग रैप इट, पुट अ कवर टू इट. हम लोग क्या करते हैं, दूध ठंडा होने के लिए वो यू नो देयर आर होल्स ऑन दैट प्लेट ऑफ दैट, राइट, यू नो द इस थिंग, छलनी कुछ तो रहता है. आई डोंट नो द नेम टू इट, इंग्लिश वर्ड टू इट. पर वो जो बर्तन जिससे हम लोग ढकते हैं उसके ऊपर होल्स रहते हैं. वो दूध वाले का मेरे को कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया आज तक. वो फॉलो हो रहा है. उसको पूरा कवर नहीं करते हम लोग. उसको एयर टाइट कीजिए. मेरे हिसाब से एवरीथिंग इन द रेफ्रिजरेटर शुड टू बी एयर टाइट कंटेनर्स, इंक्लूडिंग अ फ्रीजर. क्योंकि आप अगर चिकन भी खुला रख दोगे और मीट खुला रखोगे और फिश खुला रखोगे, क्योंकि घर में तो ये होना ही है. हम लोग के पास कुछ होटल तो है नहीं जहां हम लोग 3-3 चीजें अलग अलग स्टोरेज में रखेंगे. बिकॉज एट PNR वी कीप आवर वेजिटेबल्स सेपरेट, आवर मीट इज सेपरेट, एवरीथिंग इज सेपरेट, इवन कुक्ड सेपरेटली. इनफैक्ट इतना हम लोग ख्याल रखते कि वेजिटेरियन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड इन दैट प्रोसेस. मगर माय पॉइंट इज ब्रेड जैसी चीज है. आई मीन आपका घर में ब्रेड कहाँ रखा जाता है आप मुझे बताइए. फ्रिज में. थैंक यू वेरी मच. क्या आपने लेबल पढ़ा है? कभी भी फ्रिज में ब्रेड स्टोर हो ही नहीं सकता है. इट हैज टू बी केप्ट इन अ स्टोर इन अ अवे फ्रॉम सनलाइट इन अ कूल ड्राई एरिया लिखा हुआ है. बट शायद कूल और ड्राई का मतलब लोग रेफ्रिजरेटर नहीं है. रेफ्रिजरेटर नहीं है. अगर आप पहले भी देखेंगे ना, पहले के जमाने में तो फ्रिज थे भी नहीं. ब्रेड्स तो पहले से था.
तो कैसे टिकता था? इट हैज अ शेल्फ लाइफ, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप उसको डायरेक्टली सनलाइट में रखिए. तो पहले ना एक लकड़े के घर में बॉक्सेस रहते थे जिसमें एक एयरटाइट कंटेनर में मम्मी अपने ब्रेड्स रखती थी या दादी अपने ब्रेड्स रखती थी. वाई एयरटाइट कंटेनर? वाई? सो उसको हवा ना लगे, वो खराब ना हो, उसको सनलाइट ना लगे. तब तक फ्रिज थे भी नहीं कंसेप्ट में. दूध, यस. मैंने अभी किसी से बात कर रहा था कि कल परसों में कि दही रात को नहीं खाना चाहिए. कल रात की बात तो मेरे घर में भी है कि क्यों खाना नहीं चाहिए दही रात को? पता नहीं, मैंने मम्मी को बस पूछा, मम्मी नहीं खाना क्योंकि पहले के जमाने में शायद फ्रिज नहीं थे. मुझे ऐसा लग रहा है. आई नीड टू स्टडी ऑन दिस बिकॉज दिस हैपेंड लास्ट नाइट ओनली द टॉपिक. सो इवन आई एम गोइंग टू स्टडी ऑन दिस. इवन आई एम वांटिंग टू नो दिस नाउ कि दही रात को क्यों नहीं खाना चाहिए. शायद उस जमाने में फ्रिज नहीं थे तो वो दही फट जाता था, इसलिए रात को नहीं. भाई दोपहर को ही खा के खत्म कर दो. अच्छा, यू गेटिंग माय पॉइंट? इट कुड बी द केस. राइट. या तो you have to be very careful with how you are handling your meat also. यानी कि हमारे यहाँ भी अगर मीट आता है, it gets washed in vinegar and water. अगर कोई fruits आ रही है और vegetables आ रही है, it gets, we use, of course we rinse it under water and also use baking soda in water and soak it for a while so all that dirt, the bad toxins come out. Okay. You should be doing this at home also. I strongly suggest fruits है, vegetables है, leafy हो, non-leafy हो, आप उसको बेकिंग सोडा के साथ एक मेजरमेंट में पानी के साथ आप सोक करके उसको रहने दीजिए. लेट इट सिट फॉर 10-15 मिनट्स, देन रिंस इट थरली विद वाटर एंड कंज्यूम इट. आप देखिए फ़र्क आपके हेल्थ पे. आप जब चिकन लाते हो या मटन लाते हो या वट एवर XYZ एनीथिंग, यू फर्स्ट रिंस इट विद वाटर एंड दैट बोल शुड बी सेपरेट फॉर मीट एंड सेपरेट फॉर योर वेजीज. क्योंकि वो इसका भी जर्म्स इसको नहीं उड़ने चाहिए. वी टेक केयर. घर में कभी कभार नहीं हो जाता है. दैट इज द रीजन व्हाट यू सेड कि यस देयर इज फूड पॉइजनिंग मेजरली हैपनिंग फ्रॉम योर ओन हाउस होल्ड. हमारे लिए तो नॉर्म्स है ना दोस्त. हम लोग को टांकी हमारी हर महीने तो साफ करानी है या क्वार्टरली साफ करानी है. घर का तो ऐसा कोई रूल हार्ड एंड फास्ट है नहीं, राइट? सो या इट कैन बी बिकॉज ऑफ वाटर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ food. Anywhere food poisoning can happen even with water. ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता. So this will be my last question. So what kind of appeal do you want to make to the Nashikites in terms of like industry, food industry, or in terms of PNR? So your message to them. Well, thank you for having me over yet again, and I'll answer your last question. I would want to appeal people to be vigilant. सतर्क रहो बोलते हैं ना, तो सतर्क रहिए टू व्हाट यू आर हैविंग. एंड व्हाई इज इट ओवर प्राइस्ड? बिकॉज ऑब्वियसली क्वालिटी है, तो क्वालिटी के बारे में भी आप सोचिए. कहाँ से क्या इंग्रेडिएंट्स आउटसोर्स हो रहे. इतना बड़ा शोरूम खोल के बैठे हैं. अगर इट्स नॉट ओनली मी, आई एम सेइंग अबाउट रेस्टोरेंट्स और एनी इंडस्ट्री, यू टॉकिंग अबाउट फूड इंडस्ट्री. सो व्हाई इज इट ओवर प्राइस्ड? सी, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 5-star to have a same pricing as a restaurant, right? So there are ingredients which even in a 5-star they are very strict about using the quality ingredients only. Similarly, that is the case with our bakery. We use high-end quality products. We are giving you that क्या बोलते हैं, good feel factor about our cafes. Every cafe has its own different charm. Every cafe of PNR, at least I'm saying, has a different genre also, I would say, different clientele, I would say. Respect that thought. I keep getting reviews के आपका अगर महंगा था, टाइम लग गया. Give time to people, because if something has to be made fresh, will take time. So give time, be patient. आप सिग्नल पे भी देख लीजिए, अभी तक सिग्नल शुरू नहीं हुए और आधे रास्ते तक तो आ जाते हैं लोग. पेशेंस मर चुकी है हमारे यहाँ. Be patient enough. Use good ingredients and respect the people are using good ingredients. उनके लिए आप प्राइसिंग का इतना बड़ा फैक्टर मत ब्लेम कर दीजिए. Secondly, step out of the house, walk that extra mile यार. Walk that extra mile. I would say for your loved ones. हम लोग आर्चीज जाके ड्राइवर को नहीं बोलते ना, एक आर्चीज से कार्ड खरीद के लेके आ, एक बर्थडे कार्ड खरीद के लेके आ. वी गो आवरसेल्व्स, राइट? सो दैट इमोशन शुड बी फॉर फूड आल्सो. बट ये पेशेंस रिलेटेड आपका एक ट्वीट था बहुत टाइम पहले. क्या? आप टर्की गए थे, आपने वहां पे कोई एक कोट पढ़ा था और आपने वो ट्वीट किया था. या सो आई वाज इन इस्तांबुल एंड आई वाज गेटिंग लेट
और इस्तांबुल में कैसे है, स्ट्रीट कैफेज है, सारे जन आपको रिक्वेस्ट करते रहते हैं विद द मेन्यू इन द हैंड, प्लीज आप हमारे कैफे में आइए. सो ऑब्वियसली हमारे होटल के नीचे ही सारे कैफे शुरू होते थे, तो हम लोग वी वर सपोज टू गो टू द सम प्लेस एंड आई वाज गेटिंग लेट. तो मैंने उसको बोला था, भाई जल्दी से एक रोल पैक कर दे मेरे लिए. तो ही सेड या ओके, एंड ही प्लेस्ड द आई प्लेस्ड द ऑर्डर एंड ही वेंट इनसाइड एंड प्लेस्ड द ऑर्डर एंड इट वाज टेकिंग टाइम एंड आई रियलाइज्ड इट माई सेल्फ दैट टाइम. आई सेड लाइक, can you request the chef to do it a little early for me? I'm gonna be running late. वो मेरी yacht थी जो miss out होने वाली थी. He gave me a very cool answer. Bro, good food takes time. If you're in a hurry, come tomorrow. Oh my God. And I still remember we had a cafe named Aicha Gawat and I had used that term there on our menu. Artistic food takes time. If you're in a hurry, come tomorrow. So yes, this is there with me, and I see I mean, every day that I travel from my home to my factory at Satpur, यार मेरे को 2-3 सिग्नल लग जाती है और हर एक सिग्नल पे यही इशू है, पब्लिक को पेशेंस ही नहीं है. हर एक को एक अपनी घाई है लाइफ में जाने के आगे, और वो रिस्पेक्ट नहीं करते अगर कॉप भी खड़ा होगा. See, these people are also doing their jobs. They are standing in the sun for you in that pollution, in the heat. Respect that thought. आप हेलमेट्स खुद की पहनते नहीं हो, खुद अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सीट बेल्ट नहीं पहन के, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हेल्दी ही खाओ दिन भर, सब चीज खानी चाहिए. सी, एनी फूड प्रोडक्ट इज नॉट हार्मफुल इफ यू आर नोइंग योर लिमिट्स. इवन ईटिंग ब्रेड डेली, यू हैव टू काउंट योर कैलोरीज. राइट, आप सब खा सकते हो अगर इफ यू काउंट योर कैलोरीज. अगर कैलोरीज काउंट में रखे आपने, एंड इफ यू डोंट गो बियॉन्ड दैट, यू विल नेवर पुट ऑन वेट. अरे आप लोग तो ब्लेस्ड हो यार, मेरे को तो इधर जबरदस्ती हर एक फूड ट्रायल करना पड़ता है. हमारा तो वेट बढ़ते ही जा रहा है. कंट्रोल इट. सो या, आई मीन, हैव पेशेंस, हैव गुड इंग्रेडिएंट फूड. प्लीज सी द लेबल. आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन यू सेड कि आई सॉ द लेबल एंड दिस केम इन. दिस इज अ गुड स्टार्ट. दिस इज व्हाट आई वांट पीपल टू डू. कैलोरी काउंट मैटर नहीं करता है, इंग्रेडिएंट्स मैटर करते हैं. जब आप पढ़ते हो तब, अभी तो 0 कैलोरी भी बोला गया है. क्या पॉसिबल है कि वो 0 कैलोरी ही है? No. राइट, बिकॉज फूड डिपार्टमेंट हैज मेड अ लॉ कि एक सर्टन कैलोरीज के अंडर रहा तो यू कैन क्लेम इट 0%. तो उसका भी एक एडवांटेज लिया हुआ है 0%. बट फॉर 100 ग्राम्स ओनली लिखते हैं, 200 ml का ही लिखते हैं. वो 1 लीटर की बॉटल जब आप खरीद के कंज्यूम करते हो तब वो 0 कैलोरी नहीं हो सकती है दोस्त. आप पूरा बॉटल पी जाते हो, how can it be 0 calorie? So be smart and be vigilant is my concern now. So एक वो है, क्या ingredients यूज कर रहा है वो बंदे ने, क्या बनाया है आपके लिए कैफे, उसका भी एक कॉस्ट होता है. राइट, ठीक है ना. अगर आप गाड़ी खरीद लोगे तो गाड़ी खरीदने के बाद उसका भी एक कॉस्ट होता है आपको चलाने का. आप बहुत ब्रेक पैड यूज करते रहोगे, राइट, तो ब्रेक पैड जल्दी खराब होने वाली है ना. राइट, तो यू शुड बी द सेम फॉर योर ओन बॉडी. यू शुड टेक केयर about your body, about your belongings, about everything that you have in life. कंट्रोल में खाते हो कुछ नहीं होता है. I feel you can lead a healthy lifestyle by also eating the right food at the right time. I'm not saying eat daily, but रोज अगर आपने 2 स्लाइस ब्रेड के खाए तो कुछ आपके लिए हार्मफुल नहीं होने वाला है. You understanding my point? Right. But too much of it, yes, is anything is bad. I would say too much of anything is bad in life. आप सिर्फ फ्रूट्स ही खाते रहोगे, मगर आपने सिर्फ फ्रूट्स में चीकू ही खाते गए या सिर्फ मैंगो ही खाते गए तो आपका शुगर लेवल कहाँ जाने वाला है? आपको तो पता ही है. राइट. सो इट्स नॉट दैट कि फ्रूट्स ही खाऊंगा तो बहुत अच्छा हेल्दी रहूंगा. फ्रूट्स में भी डिफरेंट वेरिएशंस है जो एक लिमिट में खाने हैं. खाने में भी एक सिंपल लिमिट है जो आपको खाना है. पूरा टाइम मीट भी खाते रहोगे तो अच्छा नहीं है. रेड मीट, आप वाइट मीट पे भी आ सकते हो. तो इट्स लाइक दैट, यू हैव टू कीप अ बैलेंस इन लाइफ एंड दैट बैलेंस इज इम्पोर्टेंट. Thank you, sir. Thank you Thank for you for having me coming. over. Thank you for I coming wish you in our all the podcast. best for this venture of yours and for all the future podcasts. Take Thank you, care. sir. Thank you so much. Thank you.